Good morning, students. How are you? We are learning the lesson, the summit again. And as I told you, mountains are the beauty at its highest level. The beauty is there. They are something that present before us some challenges, some difficulties, and man loves to overcome them, isn't it? When we take up a climb, एक बार हम कोई काम शुरू कर देते हैं, which is full of risk, and the work which poses difficulties and these obstacles which are presented before us, so man loves to overcome them, and therefore it presents a great challenge for us. Means mountains present a great challenge for us, and man loves to overcome those challenges, and therefore those people who love to overcome challenges, they become successful in doing any such task, though it may be of climbing the Everest. So, I hope you have understood what has been taught to you till now. The author finds that the three qualities which are required to climb a summit, they are endurance, persistence, and willpower. Where they left, where they reached, the temperature, as I told you, remains in -degrees. Okay, so it is very difficult to survive in such situations. Endurance means tolerance. Definitely difficulties will be encountered on the way. Fine, difficulties will be encountered on the way, and we cannot remain away from them. अगर हम उनसे हार मान गए तो कुछ नहीं है लाइफ में. Then persistence, firmness. Once decided, we have to be firm with that. And willpower, सबसे बड़ी चीज जो है हमारी विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी निर्णय क्षमता, हमारी डिसीजन लेने की पावर, ये सब डिसाइड करता है कि हम क्या बनने वाले हैं, हमें क्या मिलने वाला है लाइफ में. सो मेजर H.P.S. अहलूवालिया also took up the climb to Mount Everest along with his friends. Now he realized that why did he take Mount Everest only? Because he gave the reasons. First of all, he believed that माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. उनको लगता है कि माउंटेन्स पर जाकर हम ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे मिलने का एक प्लेस है ये. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम इट, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. प्रकृति सबसे सुंदर कहाँ है? माउंटेन्स पर. इवन राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड he was attracted towards mountains, and he did not like coming to the plains. And even if you ask the people living in the mountainous regions, they cannot survive, or they do not like living in the places like Delhi, Bombay, or the crowded cities. No, they won't like it. Okay, now let's continue. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards, and then when the summit is climbed,
there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. अब ये डिसाइड कर लिया कि माउंटेन्स पर जाना है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों सेलेक्ट किया हमने? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, सबसे पहली चीज सबसे हाईएस्ट है ये, माइटीएस्ट, द मोस्ट पावरफुल, एंड इट हैज डिफाइड, पहले जितने अटेम्प्ट हुए कई बार अनसक्सेसफुल हुए हैं लोग, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अ मोर, ये हमें और ज़्यादा चैलेंजेस देते हैं कि हम पर विजय पानी है आपको, ओके, एंड देयरफॉर द ऑथर कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ. इट टेक्स लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आपकी ऊर्जा की एक एक कण खत्म हो जाता है, एक एक पार्ट एनर्जी का खत्म हो जाता है. ये रॉक और आइस के बीच का स्ट्रगल है. इट कैन नॉट बी गिवन हाफ वे, आप लौट कर नहीं आ सकते चाहे जीवन खतरे में ही क्यों ना हो. एट स्टेक मीन्स, एट स्टेक, एट स्टेक मीन्स एट बीइंग एट डेंजर ऑफ, बीइंग एट द डेंजर ऑफ, चाहे जीवन खतरे में ही क्यों ना हो, हम वापस लौटकर नहीं आ सकते. लेकिन एक बार जब पीक पर चढ़ गए, देन देयर इज अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट ओनली, बस सिर्फ जीत की खुशी है. पीक पर चढ़ गए, यू आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट गिव्स अ ग्रेट एक्सिलरेशन, बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती है यहाँ पर. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की खुशी. द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, ऐसा लगता है कि हमने कोई युद्ध लड़ा और उसको जीता. ओके, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. ये क्या है? फीलिंग ऑफ विक्ट्री, जीत और खुशी दोनों की फीलिंग है, ये जीत की और खुशी की फीलिंग है. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ which can only be called mystical. ऑथर ने अपने आप में कोई चेंज महसूस किया और पता लगा कि वो एक मिस्टिकल है. मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल. मिस्टिकल, yesterday I told you, mystical means spiritual. Okay. Looking back, I find I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts. There is no final answer possible. लेकिन ऑथर अभी भी कह रहा है, अब मैं फिर भी सोचता हूँ, तब भी अभी मुझे इस क्वेश्चन का तो जवाब मिला ही नहीं. That why I climbed Everest, कि मैंने एवरेस्ट ही क्यों चुना, अभी भी उसको पूरा जवाब नहीं मिला है. लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि कोई हमसे पूछे कि क्यों सांस ले रहे हो, डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबल आंसर, और व्हाई डू यू हेल्प नेबर्स, और व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो. इन सब के कोई फाइनल पॉसिबल आंसर्स नहीं है. And therefore it is the same with the narrator. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. सबसे बड़ी चीज कही जा रही है इस पैराग्राफ में कि तब तक एवरेस्ट पर जाना तो क्या है, एक फिजिकल क्लाइंब है जिसके लिए हम फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं. लेकिन जो इंसान एक बार माउंटेन्स पर हो आता है वो अपने बारे में स्पेशली कॉन्शियस हो जाता है. कैसे? he realizes his own smallness in this large universe.
हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, एंड नाउ ही रियलाइजेज दैट ही इज ओनली अ स्मॉल पार्टिकल। उसको लगता है वो तो कितना छोटा है, ही हैज़ नो एग्जिस्टेंस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। आर यू गेटिंग? एक बार जो इंसान माउंटेन्स पर होकर आ जाता है, उसको ये लगता है कि उसकी अस्तित्व कुछ नहीं है दुनिया में, सृष्टि संसार इतना बड़ा है। द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional and it is spiritual. Now the author wants to say that physical contest of the mountain is only a part of achievement. फिजिकल कंटेस्ट कर लिया, हम जीत कर आ गए, किसी पहाड़ पर चढ़कर आ गए, ये हमारे एक अचीवमेंट का एक पार्ट है, जो हमने अचीव कर लिया उसका एक पार्ट है। बट उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिलता है उससे। क्या मिलता है? हैविंग डन समथिंग, जॉय ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे हमने कुछ अचीव कर लिया, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। देन देयर इज अ सेटिस्फैक्शन, हमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम दूसरी दुनिया से काफी ऊपर जा चुके हैं। एंड इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, इंसान में नेचर और उसमें एडवेंचर के लिए इटर्नल लव है, जो बाय बर्थ है। इटर्नल मीन्स स्पिरिचुअल लव है। कहाँ के लिए? टू क्लाइंब द माउंटेन्स, टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, ओके, फॉर द एडवेंचर्स। मैन हैज दिस इटर्नल लव for all these adventures, obstacles, and he loves to overcome them. This experience is not merely physical. पहाड़ पर चढ़कर आकर, स्पेशली माउंट एवरेस्ट पर, केवल फिजिकल क्लाइंब नहीं है, इट इज इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल एज वेल। ओके, इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एज वेल। ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल क्लाइंब भी है। Okay, consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are some moments when you feel like going back. It would sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood, there is something in you that does not let you give up the struggle and you go on. ऑथर कह रहे हैं कि एक बार अगर हमने पीक पर क्लाइंब शुरू कर दी, Suppose you have shared a rope with some another climber. एक दूसरे क्लाइंबर्स के साथ तुमने अपनी रॉप के सहारे आइस को काट कर चढ़ना पड़ता है। You must have observed some pictures on television कि आइस को काट कर रॉप के सहारे उन्हें चढ़ना होता है। तो जैसे ही अगर 1 इंच का फर्क पड़ गया, आपकी रोप किसी और ने शेयर की हुई है, थोड़ा भी फर्क पड़ गया
तब कुछ दुर्घटना हो सकती है। और कई बार ये हो सकता है कि हमें ये लगने लग जाए, अरे हमने क्यों क्लाइंब शुरू की। There are some climbers who have written their records of their struggle they faced or the difficulties they faced, the struggle they had done. But you cannot. There is something within you that does not let you to give up. कुछ हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, एक ऐसी ताकत है जो हमें गिव अप करने की अलाउ नहीं करती। इट डज नॉट अलाउ अस टू गिव अप। हमें क्लाइंबिंग रास्ते में छोड़ने के लिए कभी अलाउ नहीं करती है। ओके, तो ये जैसे ही एक ग्लम फीलिंग, दुखी कर देने वाली फीलिंग आती है ना, अरे इतना टेम्परेचर है माइनस में, इतनी डिफ़िकल्टीज है, ब्रीदिंग में दिक्कत है, सांस लेने में मुश्किल है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अरे छोड़ो वापस चलते हैं। बट जो हमारे अंदर की स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट है, स्पिरिचुअल लव है, इट डज नॉट लेट अस गो बैक। ओके।